जीते की जगमग उजाले की स्वर्ण लालिमा, जिनमें रोशनी में निवेदित अविरल शुभकामना, आस्था के आलोक में आदरयुक्त मंगल भावना, आप सभी को दीपोत्सव की शुभकामना। Greetings of the day to one and all present here. Reverend Father Principal, Reverend Father Jackson, Reverend Sister Jaina, respected teachers, and my dear aunts and minds. Today, I, Khushi, I, Purvika, and I, Drishti, stand here to welcome you all on this auspicious occasion of celebration of Diwali by Greenhouse. First and foremost, we would like to wish you all a very happy Diwali. Diwali, also known as Deepavali, is one of the most important, hugely awaited and immensely cherished festivals celebrated across India. This festival gets its name from the Sanskrit words Deep and Avali, which means rows of earthen lamps. On this day, every Indian family makes preparation to welcome Goddess Lakshmi by lighting oil lamps that symbolizes victory of good over evil and freedom from darkness. During Diwali, people wear their finest clothes, decorate the interior and exterior of their houses with diyas, rangolis and palukas, perform worship ceremonies of Goddess Lakshmi, the goddess of prosperity and wealth, light fireworks and partake in family feasts. But the celebration of Diwali is not restricted to lighting of lamps and decoration of houses. The true sense behind the celebration of this festival is to illuminate our hearts with the bond of love and togetherness, dispelling the ill will and hatred from our hearts. Also, by understanding and being with each other at the time of pleasure and pain. A lamp emits such a light that makes the path bright. Dispelling the darkness around, lamp illumines every side. Those who go on the path, the lamp shows the right path. To fulfill its aim, the lamp serves the world with all its might. The lamp holds a special importance on this day of Diwali. Light symbolizes knowledge. It acts as a dispeller of darkness. As soon as the light is lit, darkness flees away. Similarly, lamp being offered to Lord dispels the darkness inside the hearts of the devotee. So let us begin the day's celebration by lighting the lamp. So here we invite Reverend Father Jackson, Reverend Sister Jana, Anand Narula Sir, Poonam Singh Ma'am, Lalit Thapa Sir and Neetu Ma'am to light up the wicks of the auspicious lamp. एक दिया हो ज्ञान रूप, मन मंदिर को रोशन कर दे। एक दिया हो सघन साधना, साधु सदृश जीवन कर दे। एक दिया सुंदर इतना हो, जग उपवन जगमग कर दे। एक दिया हो प्रेम पूर्ण, जन जीवन प्रेम पूर्ण कर दे। एक दिया जो याद मिटाए, नफरत को उछल कर दे। एक दिया हो मदद रूप, दुर्बल मन में ताकत भर दे। एक दिया सीमा पर खप गए, वीरों को अर्पण कर दे। एक दिया हिम्मत वाला, मन का विश्वास प्रबल कर दे। एक दिया उस आशा का, दुनिया के कलेश शांत कर दे। एक दिया भूली बिसरी, अच्छी यादें ताजा कर दे। एक दिया इस दीपोत्सव, मेरे संकल्प अटल कर दे। सत्कर्मों की राह चलूं मैं, मन में इतना साहस भर दे, मन में इतना साहस भर दे। Music is a great uniter, an incredible force, something that people who differ on everything and anything else can have in common. Song defines our cultural heritage and our traditions. It is one of the best ways to celebrate a festive. It will surely strum our heartstrings and fill the surroundings with their melodious voice. So here I invite some students to sing a melodious song in front of you all.
this festival, but I'm here to tell you why do we celebrate it and how to celebrate it. Diwali, very well known as the festival of lights. We have all certainly known about the epic stories behind the origin of Diwali, like how Lord Ram, along with Devi Sita and his brother Lakshman, came back to Ayodhya after spending 14 years in exile and executing the devil Ravan, or how Lord Krishna had won against Narkasur. All these amusing tales revolve around one idea, which is also the objective of Diwali, that is, the triumph of good over the evil. But the question that arises is, do we really understand the true meaning of Diwali? My dear friends, we surely misunderstand the real meaning of Diwali. It is indeed renowned for good over evil, but then what about the evils that exist inside our hearts, like anger, jealousy, and frustration? They are the devils of the modern world, not in the form of figures, but as emotions. We cannot see them, but feel them. And if these devils are not brought to an end, then we lose the real spirit of Diwali. So the point is that we must learn how to practice the good and how to be grateful, hopeful, and joyful. Nowadays, the significance of Diwali has shrunk to only wearing nice and expensive clothes, singing few hymns to gods and goddesses, and bursting crackers and posting pictures on Instagram or Facebook. But I hope you know the story of how Goddess Lakshmi chose Lord Vishnu to be her beloved husband on this auspicious night of Diwali. This story teaches us the importance of love on this day. But today's generation is getting so self-centered and selfish that we only care about our own happiness and satisfaction. Just like we have witnessed boys and girls trying to burst crackers in our school for their momentary gratification. My dear friends, people are getting killed while making these crackers in factories. Our Mother Earth is getting disintegrated, and the reason behind all this is our momentary gratification. While in the process of trying to impress Goddess Lakshmi, we forget about our duty towards Mother Nature. Diwali was never meant to be like this. It is meant to spend time with your loved ones and being grateful for the gift of this life and time that we get to spend with them. I am sure that these words must have been spoken by other children in the previous years. So now, let us again repeat those words so that our mind and our heart truly understands what Diwali is supposed to mean. That is, while cleaning and brightening our houses, let us also not forget to clean our Mother Nature and brighten the lives of other people. Now I'm going to end my speech with these beautiful lines. हर घर दीप जगमगाए तो दिवाली आई है, लक्ष्मी माता जब घर पर आए तो दिवाली आई है, दो पल के शोर से क्या खुशी मिलेगी हमें, दिल के दिए जो मिल जाए तो दिवाली आई है, पकवान मिठाई सब मिलकर खाएं तो दिवाली आई है, पटाखों से रोशनी तो होगी परंतु धुआं भी होगा, दिए जब नफरत के बुझ जाए तो दिवाली आई है, तो दिवाली आई है। थैंक यू। आदौ राम तपोवनाधिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एतत् रामायणम्। तुम्हें नहीं लगता हमें घर चलना चाहिए? अंधेरा होने जा रहा है। मम्मी घर पर इंतजार कर रही होंगी। रुको रुको, अभी चल रहे हैं ना, एक तो स्कूल भी जाना है, छुट्टी भी नहीं है। पता ही नहीं दिवाली की छुट्टियां कब शुरू होंगी।
दिवाली की छुट्टियां आज ही शुरू हो जाएं। मैं और मेरी फैमिली इन हॉलीडेज में बहुत मस्ती करने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पापा ने एक न्यू कार खरीदी है जिसमें हम खूब घूमेंगे। क्या तुम लोगों का भी कोई प्लान है? मैं तो मेरे पेरेंट्स के साथ दादी दादाजी के घर जाने वाला हूँ और फिर दिवाली के बाद हम सब मिलकर शिमला घूमने जाएंगे, क्योंकि मेरे पापा ने पहले से ही टिकट्स बुक करवा दी हैं। और मैं तो इस दिवाली बहुत सारे पटाखे जलाने वाली हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरे भैया फॉरेन कंट्री से वापस आ रहे हैं और वो मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स, तरह तरह की लाइट्स और फायर क्रैकर्स भी लाएंगे। तो तुम सब भी मेरे घर पर इनवाइटेड हो, सब आना, हम मिलकर खूब मस्ती करेंगे। और मेरे पापा ने बहुत बड़ा बंगला बनवाया है। वह इतना बड़ा है कि उसे सजाने में मुझे कई दिन लग जाएंगे। मुझे घर पहुंचकर उसे सजाने की पूरी तैयारी करनी है। चलो जल्दी घर। मैं इस बार दिवाली पर अपने घर को बहुत सुंदर सजाना चाहती हूँ। चलो जल्दी। हे फ्रेंड्स, तनीषा से तो पूछो वो क्या करने वाली है इस दिवाली पे। तनीषा, इस दिवाली पर तुम्हारा क्या प्लान है? मेरा कोई प्लान नहीं है। तुम तो जानते ही हो मैं अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती हूँ। मेरे तो मम्मी पापा भी नहीं है। मुझे कौन मस्ती कराएगा? तुम सब यहाँ से चले जाओ यहाँ से। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वही चला है रे। उम्र का ये ताना वाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, कि देखे न भाले न जाने न दाए रे, दिशाहारा कैमन बुका मुंटा। प्रिया, आकांक्षा, दिस इज नॉट फेयर। आप सब उस पर हंस रहे हो, उसका मजाक उड़ा रहे हो। ये बहुत गलत बात है। तनीषा हमारी क्लास में पढ़ती है और वो तो हमारी फ्रेंड है ना, तो हमें उसका मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए। और तुम सब जानते हो ना कि वैसे भी उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। वी आर वेरी सॉरी। फ्रेंड्स, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास तनीषा के लिए बहुत अच्छा प्लान है जिससे वो इस दिवाली बहुत खुश हो जाएगी। क्या प्लान है? रुको बताता हूँ। एक बार हम सब मिलकर तनीषा के घर चलते हैं। चलो। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। नमस्ते दादी जी। हाय तनीषा। नमस्ते बच्चों। अरे तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम सब यहाँ पर तुमसे और तुम्हारी दादी जी से मिलने आए हैं। दादी जी, आप जानते हो हम सब यहाँ पर आपकी मदद करने आए हैं। अच्छा बच्चों, बहुत अच्छी बात है। दादी, पहले आप ये बताइए कि आप क्या पढ़ रही हो? बेटा, मैं रामायण का पाठ कर रही हूँ। दादी जी, रामायण में क्या बताया गया है? बेटा, इसमें सत्य, आज्ञाकारिता, वचन पालन, असत्य पर सत्य की जीत के बारे में चर्चा की गई है। संपूर्ण भारतवर्ष में पुरुषों के आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के चारों पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र थे, जो सभी को बहुत प्रिय थे। उन्हीं के पूरे जीवन का वर्णन इस पवित्र ग्रंथ में लिखा गया है। अच्छा दादी, तो भगवान राम माता पिता और प्रजा सभी के लाडले थे, तो इनके जन्म होने पर तो अयोध्या में खूब खुशियां मनाई गई होंगी। हाँ, उन खुशियों का वर्णन वाल्मीकि जी ने बहुत सुंदर शब्दों में रामायण में किया है।
उनके जन्मोत्सव का दृश्य रामायण पढ़ते पढ़ते आंखों के सामने आ जाता है। मैं जब भी इसे पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी उनके जन्मोत्सव में शामिल थी। वह दृश्य कितना भव्य था। अयोध्या वासियों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था।
सफाई करते हैं। आज है छुट्टी मिलकर अपने घर को साफ चकाचक कर दो, घर को साफ चकाचक कर दो, घर को साफ चकाचक कर दो। ऊनी से मकड़ी के जाले दीवारों की धूल हटा ले, ऊनी से मकड़ी के जाले दीवारों की धूल हटा ले। टीवी और आईना इन्हें पोंछना नहीं भूलना, दरवाजे को भी चमका दो, घर को साफ चकाचक कर दो, घर को साफ चकाचक कर दो। बस बस बच्चों, अब तुम बैठ जाओ, तुम भी थक गए होगे। दादी, आगे की कहानी सुनाओ ना, फिर क्या हुआ? श्री राम बाल्यकाल से युवावस्था में कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। अब उनके राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, क्योंकि उनके पिता राजा दशरथ वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुके थे। अतः वो अपनी सारी जिम्मेदारी श्री राम को सौंप देना चाहते थे, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया। क्यों संभव नहीं हो पाया? बेटा, रानी कैकेयी व उनकी दासी मंथरा के कारण राम का राज्याभिषेक उस समय नहीं हो पाया। अरे कैकेयी, बंद कर ये तैयारी, वहाँ हमारे लाल के हाथों से राज्य छीना जा रहा है और तू यहाँ उत्सव मना रही है। ऐसे तो राम राजा बन जाएगा। चुप हो जा मंथरा, ये तू क्या कह रही है? राम मेरा प्रिय पुत्र है, वही बड़ा है, उसे ही राजा बनना चाहिए। मैं सही कह रही हूँ, राम बनेगा राजा और उसकी माँ कौशल्या बनेगी राजमाता। तू नहीं, तू और मेरा प्यारा भरत सेवक बन के रह जाएंगे। तो मैं क्या करूँ? अब तुम भी बताओ मंथरा। अरे रानी, तू भूल गई क्या जब तूने युद्ध में राजा दशरथ के प्राण बचाए थे और उन्होंने तुझे 2 वचन मांगने के लिए कहे थे? जा जा मांग ले दे 2 वचन। एक वचन में भरत की राजगद्दी और दूसरे में राम का 14 वर्ष का वनवास। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो मंथरा। तो दादी, क्या फिर श्री राम का राज्याभिषेक नहीं हो पाया? रानी कैकेयी की हठ धर्मता के कारण श्री राम को पिता की आज्ञा का मान रखने के लिए 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा। फिर दादी, श्री राम ने 14 वर्षों तक वन में रहकर क्या किया? बेटा, वन में रहकर उन्होंने राक्षसों का वध किया और वहीं पर रहकर उन्होंने रावण रूपी बुराई को भी समाप्त किया। क्या रावण भी बुराई का नाम था? नहीं बेटा, रावण तो बहुत प्रतापी और विद्वान राजा था, किंतु उसके अहंकार ने उसे बुरा बना दिया और उसका सर्वनाश करा दिया। बच्चों, क्या तुम्हें पता है, उस समय की बुराई का तो अंत हो गया, किंतु आज भी हमारे समाज में बहुत सी बुराइयां व्याप्त हैं। कौन सी बुराई दादी? हमें तो कोई बुराई नजर नहीं आती। देखो, तुम्हारी आंखों के सामने ही है ये बुराइयां। माँ, आज क्या है? आज बाजार में इतनी भीड़ क्यों है? बेटा, 2 दिन बाद दिवाली है, इसलिए लोग खरीदारी कर रहे हैं। माँ, हम भी दिवाली मनाएंगे। बेटी, तुम्हें क्या बताऊं, हम गरीबों के लिए तो त्योहार मनाना एक सपने जैसा है। वैसे लोग क्या क्या करते होंगे? बेटी, लोग इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। नए कपड़े, खिलौने, मिठाइयाँ एवं पटाखे खरीदते हैं। माँ, हम भी खरीदारी करेंगे। मैं इस बच्ची को कैसे समझाऊं कि गरीबों को त्योहार मनाने की अनुमति नहीं होती। वे तो केवल दूर लाचार खड़े होकर अमीरों की खुशियों को देखते रहते हैं। हमारे लिए तो 2 वक्त की रोटी जुटाना भी बहुत मुश्किल है।
जरा पढ़ तो सही, क्या लिखा है चिट्ठी में? लेकिन अम्मा जी, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। आप डाकिया साहब से ही पढ़वा लीजिए ना। डाकिया साहब, हमारे परिवार में हमारे बेटे के अलावा कोई भी पढ़ना नहीं जानता, आप ही पढ़ दो हमारी चिट्ठी। ठीक है अम्मा जी, लाइए। अम्मा जी, आपका बेटा कह रहा है कि इस बार आएगा तो फैमिली साथ लेकर जाएगा। ठीक है डाकिया साहब। डाकिया साहब, जरा चाय पानी तो पी के जाइए। नहीं नहीं अम्मा जी, मुझे और भी चिट्ठियाँ बांटनी है, कभी और दिन आऊंगा। ठीक है डाकिया साहब, धन्यवाद। बहू। हाँ अम्मा जी, बेटा कह रहा था अब की बार फैमिली लेकर जाएगा। ये फैमिली होती क्या है? अम्मा जी, मेरे ख्याल से ना फैमिली ना रजाई विदों को बोलते होंगे। चल चल, तू ठीक ही कह रही होगी, अब तू बिस्तर बांध दे। ठीक है अम्मा जी। अम्मा जी नमस्ते, कैसी हो, क्या कर रही हो? नमस्ते बेटा, नमस्ते। ठीक हो गीता, तू बता तू कैसी है? मैं तो बस बेटे की चिट्ठी पढ़ रही थी, कह रहा था अब की बार फैमिली लेकर जाएगा, बस वही बांध रहे थे। क्या फैमिली बांध रहे थे? हाँ, तो किसे कहते हैं फैमिली? अरे अम्मा जी, फैमिली का अर्थ है परिवार। आपका बेटा कह रहा है कि इस बार जब आएगा तब फैमिली साथ लेकर जाएगा। हे भगवान, हमें तो पता ही नहीं था कि फैमिली का अर्थ ये होता है। अब पता चला पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है। इसीलिए अम्मा जी मैं कहती हूँ कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। आप भी अपनी बहू को पढ़ा लिखा लीजिए, कम से कम चिट्ठियाँ तो पढ़ लिया करेगी। सीमा, आज मैं बहुत थक गया हूँ, एक कप चाय लाना। ही लीजिए चाय। आज ऑफिस से आने में देर कैसे हो गई? कुछ नहीं, बस आज ऑफिस में काम ज्यादा था इसलिए। अरे वो बाबूजी ने पैसे दे दिए। कौन से पैसे? वही जो उनका फिक्स डिपॉजिट था, वह मिला है ना इस महीने? हाँ, वो पैसे तो बाबूजी ने मुझे 2 दिन पहले ही दे दिए थे। अच्छा है, बस एक बार घर और प्लॉट हमारे नाम हो जाए फिर सब अच्छा रहेगा। अरे बेटा सोहन, बहू, अरे बहू। जी बाबूजी, कहिए क्या हुआ? ये लो, हमने घर और प्लॉट तुम्हारे नाम कर दिए हैं। ठीक है बाबूजी, समय पर लिखा पढ़ी हो जाए तो अच्छा है। बहू, जरा मेरे और तुम्हारे बाबूजी के लिए 2 कप चाय तो बना दो। माँ जी, मैं अभी ऑफिस से थक कर आई हूँ, आप भी तो चाय बना सकती हैं, घर पर ही तो थी आप। 1 कप चाय भी नहीं बना सकती, घर पर ही रहती सारा दिन घर पर। बहू, अब मैं ज्यादा बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे जोड़ों में भी दर्द रहता है, अब मुझसे काम नहीं होता। तो फिर घर में रहती ही क्यों है? वृद्धाश्रम में जाकर रहिए। माँ, आप भी बेवजह परेशान करती हो। मैं तो इस रोजों से चिक चिक से परेशान हो गई हूँ। अब घर और प्लॉट हमारे नाम हो ही गया है तो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाइए। शायद तुम सही कहती हो, मैं कल ही माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम भेजने का फॉर्म लेकर आता हूँ। अच्छा है। नमस्ते मित्र। नमस्ते आदित्य, कैसे हो? अरे मित्र, क्या बताऊं, आजकल ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा। क्यों, क्या हुआ? तुम तो जानते ही हो, मैंने विज्ञान विषय में PhD की उपाधि ली है और कक्षा में भी हमेशा प्रथम स्थान पर आता था। हाँ, मैं पहली कक्षा से ही तुम्हारा सहपाठी ही रहा हूँ। तुम तो बचपन से ही होनहार छात्र रहे हो, भला कौन नहीं जानता। लेकिन इतनी डिग्री होने के बाद भी मुझे अभी तक मनचाही नौकरी नहीं मिली। इसका कारण क्या है? भ्रष्टाचार, और क्या। हमारे आसपास सब जगह भ्रष्टाचार ही तो है। अभी कल ही की बात सुनो, कल मेरा साक्षात्कार था, वहाँ एक पद के 15 व्यक्ति उपस्थित थे जो ज्ञान एवं अनुभव में मुझसे कम थे। फिर क्या हुआ? होना क्या था, हर बार की तरह इस बार भी जो व्यक्ति नेता की सिफारिश से आया था उस अयोग्य व्यक्ति का चयन हो गया। हाँ मित्र, भ्रष्टाचार के कारण हमारे देश के अनेक होनहार जवान खाक छान रहे हैं। हाँ मित्र, ना जाने ये भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा और कब सही व्यक्ति को उसका अधिकार मिलेगा। हाँ मित्र, ये तो तभी संभव है जब हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार मिलेगा। हेलो सर, मैं ABCD बैंक से बोल रहा हूँ, क्या आप दीपक जी ही बोल रहे हो? हेलो, हाँ मैं दीपक ही बोल रहा हूँ। सर, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि आपके पूरे 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। क्या? अरे
मेरा और 1 करोड़ का इनाम। आज तक तो कभी 1 रुपया भी इनाम में नहीं मिला। सर, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। आपको बस अपना मोबाइल नंबर, OTP नंबर मेरे फोन नंबर पर सेंड करना होगा। ठीक है सर, मैं वैसा ही करूँगा जैसा आपने कहा। आज तो इतना पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा कि मेरे जीवन की सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। अरे ये क्या हुआ? मेरे अकाउंट में जो 10,000 रुपए थे वो किसने निकाल लिए? हे भगवान, मैं तो कहीं का नहीं रहा। तो देखा आप सबने किस तरीके से ये सामाजिक बुराइयां हमारे देश की प्रगति में बाधक बन रही हैं। जिस प्रकार भगवान राम ने रावण रूपी बुराई का अंत किया था, उसी प्रकार हम में से किसी एक को राम बनकर इन बुराइयों का अंत करना ही होगा। तभी हम सब इस कलयुग में राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं। आज जन्म की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जन्म की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जन्म की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। दादी, हमें उस समय के दृश्य के बारे में बताओ ना, जब श्री राम 14 वर्षों बाद अयोध्या लौटे थे, तो क्या हुआ था? बताती हूँ। जिस दिन राम वन से वापस लौटे थे, उस दिन अयोध्या नगरी दीपों व फूलों से सजा दी गई थी और लोग खुशी से नाच उठे थे। चारों तरफ ढोल नगाड़े बजने लगे।
राज्याभिषेक करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जब जब समाज में अन्याय, स्वार्थ, लालच और अहंकार उत्पन्न हो, तब तक आप किसी न किसी रूप में आकर इन सभी बुराइयों से सभी प्राणियों की रक्षा करें और दीपावली जैसे पर्व को युगों युगों तक बनाने का आशीर्वाद प्रदान करें। Reverend Sister Chaina, respected teachers, and my dear students, on this beautiful occasion of Diwali, on behalf of Reverend Father Renish, our principal, I express my sincere wishes to every one of you on this beautiful occasion. Happy Diwali to all of you. On this stage, we are seeing the beautiful drama on the epic of Lord Rama, how on his return to Ayodhya, the great festival of Diwali is celebrated. And we have heard also the speech on Diwali, how the victory over evil has come by defeating the demon. On this festival, different occasions, different stories, different epics we might have read, and all these epics say one thing, that is victory over evil by putting on light and dispelling the darkness that we have. The beautiful message that we can gain from this festival, the greatest Indian festival of the series of light or Diwali, is already enacted in today's stage program. There are so many vices that we have. Those vices can be overcoming and dispelling with the truth. By knowing the truth and bringing out the light, we can dispel those darkness from our lives, such as poverty, illiteracy, and other things that are shown that exactly points out the things that we need to overcome in today's world. As we celebrate this festival,
The beauty of the festival is that everyone is busy with lighting the lamp, sharing the sweetness with each other. Let us become that true light to dispel the darkness in everyone's by giving our best to others and sharing the sweetness that we have, the inner joy, the attitude of forgiveness, the attitude of loving towards others, the attitude of correction, the mutual correction, fraternal love. With this sweetness, we can make this festival as more beautiful, more meaningful to each one of us. Let us take a strong pledge today that as Diwali, let it not go just simply as firing the crackers or wishing or wearing new clothes and wishing, but let us make it a meaningful by sharing the true happiness with each other, through living a life of light to others, showing path to others, and bringing joy in others' life. For this great festival, I wish once again all a very happy Diwali, and thank you. It is rightly said that gratitude is the best attitude. The day's celebration would be incomplete without thanking the efforts of those who have put up this great show. First and foremost, I would like to thank the Lord Almighty for showering His choicest blessings and giving us such a wonderful opportunity to celebrate Diwali in a joyful way after long. I would like to thank Reverend Father Principal, Reverend Father Jackson, and Reverend Sister Jaina for their encouragement and motivation behind the celebration of each festival in the school. I would like to thank the entire team of teachers and students of St. Anselm's whose combined efforts are involved in preparing and presenting this program. I would also like to thank the management, office staff, discipline committee, and Narayan Sevaks for their contribution and cooperation. Last but not the least, I would like to thank each one who has directly or indirectly contributed. Thank you, one and all.